میرے عزیز پاکستانیوں، آج 23 مارچ 2026 ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا، جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے، اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہیں۔ تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے، تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا۔ بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور کو۔ 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے۔ بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے، سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور زور بازو سے آئی ہے۔ میرا عزیز پاکستانیوں، آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت شروع کی ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچ ناراض ہیں۔ یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، پختون ناراض ہیں۔ پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے، پنجابی ناراض ہیں۔ سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی خود مختاری میں۔ کیونکہ ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا، یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں۔ جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی پارٹی، جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام جماعتیں،
ये उनके खिलाफ हैं, उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन जो जमहूरियत पसंद है, जो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली चाहते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग अब लड़ेंगे, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो लोग सड़कों पर आएंगे, वो आपकी आंखों की में आंखें डालकर बोलेंगे कि तुम्हारी कोई पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। हम उस हर पॉलिसी से बगावत करेंगे जो बंद कमरों में होगी। हम उस हर पॉलिसी से बागी है जो इनके इंटरेस्ट में है, जो अवामी मफाद में नहीं होगा। हम उस किसी भी पॉलिसी को नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह के आपको पता है कि जो हमारे हमसाए मुमालिक हैं, अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पर जो ये बंद कमरों में बनाते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, तो हमें कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ। जब हम उनकी बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो कहते हैं कि ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है? ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूं इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूं पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम टुकड़ों में बंट रहे हैं। कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई पंजाबी, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई सिंधी। पाकिस्तान में अब इस वक्त एक ही लीडर है जिस पर पूरा पाकिस्तान मुतफिक है, जो कौमी यकजहती की अलामत है। वो अडयाला जेल में नाहक कैद है। उसका नाम है इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान नियासी। जो कौमी यकजहती की अलामत है, जो नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है, जिसके साथ विजन है, जो कुफार की सरजमीन पर, कुफार के सामने, कुफार की आंखों में आंखें डालकर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बोलता है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, जो इस्लामोफोबिया का नाम लेता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। पाकिस्तानियों को वही लीडर चाहिए है, और वो लीडर ही पाकिस्तानियों को मुतफिक कर सकता है, वो ही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को उठा सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, वही पाकिस्तान को खुददार को दिला सकता है, वो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दिला सकता है। बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं बचा। लेकिन बदकिस्मती से वो अडयाला जेल में है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो अदालतों से नाउम्मीद हो चुका है। कल उसका बेटा ट्वीट करता है, जो जुडिशरी के बारे में वो बोलता है, वह आप सबने सुना। वो मायूस हो चुका है। उसको पता है कि ये अदालतें यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि पार्लियामेंट यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि तमाम इदारे यरगमाल हो चुके हैं। अगर वो आज बिगड़ा है, डटा है, नहीं झुक रहा, तो वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमने निकलना है इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। हमने उसके लिए आवाज भी उठानी है।
हमने उसके लिए रोडों पर भी आना है, हमने उसके लिए गोली भी खानी है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे। इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है। उस तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लगी हुई है। पूरी पाकिस्तान जो तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अलामा नासिर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज बलूचिस्तान में भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर वालों, कश्मीरियों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मियां वाली वालों, आप जो है मेरे लीडर का शहर है, इंशाअल्लाह ताला मैं मियां वाली भी आ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी भी आ रहा हूं। अब इस तहरीक को इंशाअल्लाह मजीद तेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है। आप ही हमारी ताकत है, हम बूट पॉलिशियां नहीं है, आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आप सबको, आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खिराज तहसीन पेश करता हूं आप सबको। जिस तरह आप लोग बैठे हैं तंजीम के साथ, इत्तेहाद के साथ, वाकई में मैं आपसे मुतासिर हुआ हूं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी धूप में आप मुसलसल बैठे रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, हमारे जो 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा हैं, बाकी हमारे जितने भी शोहदा हैं, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनसे ये वादा करते हैं, उनकी फैमिली से, कि उनकी ये कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी। दूसरी बात जो आदिल बाज़ई साहब ने कही, यहाँ पर हमारे जो बाज़ई और कासी कौम की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, बेशर्मो थोड़ा सा लिहाज करो, वो कब्जा छोड़ो या जो है हमारे पख्तूनों को पैसे दो। उस जमीन की जो मुफ्त के कब्जे डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और दाऊद शाह साहब कह रहे हैं कि सीएम बलूचिस्तान, तो जिस वज़ीर-ए-आला की थोड़ी बहुत जो है हैसियत होती है, ताकत होती है, बंदा उससे गिला करता है। जो जाली वोटों के साथ जाली वज़ीर-ए-आला हो तो उनसे हम गिलाई क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो हमारे कारकुनों के साथ हुआ, जो हमारे चमन के दोस्त डिस्ट्रिक्ट सदर, उनकी चादर और चार दीवारी की पामाली हुई, तो भुगती साहब आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। अजब खान अफरीदी का
تھوڑا قصہ آپ پڑھ لیں کہ جب انگریزوں نے اس کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی تھی تو اس نے کیا کیا تھا. تو آپ بھی قبائلی ہیں, ہم بھی قبائلی ہیں. چادر اور چار دیواری کی پامالی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. باقی سیاسی اختلاف اپنی جگہ وہ ہوتا رہتا ہے, لیکن جمہوری طریقے کے ساتھ برتاؤ رہے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی. شکریہ. وما علینا الا البلاغ.